Hello everyone. Today we are going to learn about organizational behavior. What Unit 1, Introduction to Organizational Behavior. So first of all, these are the important questions and the common questions which can be asked from this chapter. What is organizational behavior? That is OB. Organizational behavior is the systematic study of human behavior in an organization. OB मतलब organization behavior से आप ये समझते हैं कि एक systematic study है ह्यूमन बिहेवियर की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी वर्क प्लेस के अंदर जो भी ह्यूमन बिहेवियर होगा वो एक उसकी सिस्टमैटिक स्टडी को हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं. सो इट परफॉर्म्स अंडरस्टैंडिंग एट इंडिविजुअली. हम उस ह्यूमन बिहेवियर को एट इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ेंगे और इंटरपर्सनली बिटवीन द टू पर्सन्स भी पढ़ेंगे कि उन दोनों ह्यूमन के इंटरपर्सनली कैसे बिहेवियर है और बिटवीन द टीम डायनामिक्स मतलब कि मोर देन टू पर्सन्स में भी एक टीम में रहकर भी उस ह्यूमन का क्या बिहेवियर होता है. एंड द कंप्लीट ह्यूमन बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सिमिलर टू द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन. ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन बिहेवियर जैसा ह्यूमन बिहेव करते हैं वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम बिहेव करें. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 विच कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स विल बी, कैन वी डिफरेंशिएट द इंडिविजुअल बिहेवियर, how human behavior would be specified at individual level, and what are the factors which are affecting at this level. So individual behavior is the study of behavior of an individual. मतलब कि ह्यूमन का बिहेवियर हम सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे मतलब कि सिर्फ उसका ही जानने के लिए कोशिश करेंगे. सो द फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, उस इंडिविजुअल पर्सन के बिहेवियर पे हम कैसे पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ, या कैसे उसको जज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनालिटी. उसका बिहेवियर पर्सनालिटी पर चेंज हो सकता है. मे बी द पर्सन इज शाई, मे बी द पर्सन इज बोल्ड, मे बी द पर्सन इज ब्रेव. दीज आर द पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन एट इंडिविजुअल लेवल. Second factor that can be affected at individual level would be motivation. It's not compulsory or it's not necessary that same person is motivated by through incentives. May not be necessary that another person is also motivated through incentives. Maybe he is motivated by appreciation or promotion or something else. So the next factor is the third factor जो कि affect कर सकता है individual behavior को is the attitude of a person. Maybe the attitude of one person is positively taking the things, maybe the attitude of another person is negatively taking, and maybe the person neutrally taking the things. So it's totally different from one individual to another individual. The fourth factor which influence the individual behavior is the learning style. Maybe one person is different from the another person in the learning style also, in the way of learning also. Maybe the person one is takes the thing, grabs the things quickly, or maybe the other person be a slow learner or not a very focused person, or someone wants to practice and then learn, or someone wants to learn while listening. When he listens he learns or grabs the memory quickly. So the last factor is the perception of an individual. Maybe the viewpoint through past experiences. किसी एक इंडिविजुअल का परसेप्शन उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड हो सकता है, उसका जो व्यू पॉइंट हो सकता है. मे बी ही हैज़ एक्सपीरियंस जो गुड और पॉजिटिवली थिंग्स, सो हिज परसेप्शन किसी एक चीज़ को लेकर पॉजिटिव हो सकता है और वही सेम चीज़ दूसरे पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकती है क्योंकि उसके साथ कुछ नेगेटिवली एटीट्यूड हुआ हो. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम यूनिट 1. Let's come to the next question, that is group behavior. Let's discuss about the group behavior and the factors affecting the group behavior. Group behavior is the study of behavior of a group in an organization. That is, in a group there are many persons or many employees working together. So how they all will behave, we have to discuss this in this group behavior. Next is the factors that affects in group behavior will be group dynamics. First is group dynamics. Group dynamics means group behavior के लिए हम क्या पढ़ेंगे, group dynamics. Group dynamics के अंदर तीन चीज़ें आती हैं. ग्रुप का साइज होना चाहिए कि ग्रुप कितना बड़ा है, कभी कभी ग्रुप का साइज डिपेंड करता है कि उसका बिहेवियर कैसा है. और ग्रुप कोहेसिवनेस मतलब ग्रुप के अंदर कितनी क्लोजनेस है उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं ह्यूमंस. एंड ग्रुप की क्या नॉर्म्स हैं, क्या रूल्स हैं, क्या अनसेट रूल्स फॉर्म होते हैं किसी ग्रुप के अंदर, वो उसके ऊपर बेसिस होते हैं. पीपल बिहेव ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप नॉर्म्स ऑल्सो. सो the next factor that is affecting under the group behavior will be teamwork. How every single individual behave in a team together. We have seen in the individual behavior कि एक अकेले लेवल पे एक सिंगल इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है, लेकिन एक टीम में और how the all the persons together behaving in a team. So that is called the teamwork. The next is conflict management. Conflict management is ego clashes or the difference in interest. Where there is a more than one people together, there is ego clashes, there is differences in interest. So how they are going to manage that conflict or that ego clashes between the work together in a group is called conflict management. So how the each and every individual will behave in this team to manage the conflicts is also the part of group behavior. The last is leadership. How the group behavior is enhanced through leadership. Leadership is behavior of a leader. If there is a group, if there is a team, there is a leader and there is a particular type of leadership style followed. So how? So leadership is the behavior of a leader. Let's continue. The last factor is working style or communication. Group behavior is also based on the working style or the communication level followed in a group. So the way of working, no barrier should be there in communication. It follows that group behavior is
working positively in an organization. Now the last question of this unit 1 which is important is name any 5 challenges of organizational behavior. All the challenges of organizational behavior means जो भी organizational behavior को follow करने में कौन कौन से challenges आ सकते हैं study करने में. Then first is workforce diversity. There is many difference in the culture tradition in workforce or a team. So it is यहाँ पर workforce diversity मतलब कि culture में tradition में workforce या team के अलग अलग culture हो सकते हैं, different tradition हो सकते हैं. तो ये difficult होगा कि सारे different individuals together एक team में positively ही work करें. So it is a very great challenge that they coordinate and together form and achieve the goal in an organization. So the second is employee motivation. Employee motivation is one of the challenge, that is right motivation technique should be used for the right employee, because it's not necessary that one motivation technique is used can be used to another person also. So the next challenge is globalization. So globalization of business is also one of the challenges of organizational behavior. इसमें क्या है कि कंपनी वर्क करेगी अक्रॉस द कंट्रीज़ में, मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ इन डिफरेंट कंट्रीज़ विद डिफरेंट लॉज, वहाँ के डिफरेंट लॉज होंगे, डिफरेंट टाइम जोन्स होगा और उनकी वर्क हैबिट्स भी डिफरेंट हो सकती हैं. सो इट्स अ वेरी ह्यूज चैलेंज कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर ईच इंडिविजुअल का बिहेवियर सेम हो और पॉजिटिवली बिहेव हो. द नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल चेंज. टेक्नोलॉजिकल चेंज इज ऑल्सो द ग्रेटेस्ट चैलेंज फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. वाई? बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंजेस वेरी फास्ट. टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी फास्ट. सो एम्प्लॉयज़ मस्ट कीप लर्निंग न्यू स्किल्स. एम्प्लॉयज़ को न्यू स्किल्स लर्न करते रहना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन को भी उन्हें ट्रेन करते रहना चाहिए, इससे कि वो चेंजेस में अडेप्ट हो सकें, उसको लर्न कर सकें और उसे रेजिस्ट ना कर सकें, उसे मना ना कर सकें सीखने के लिए. दे शुड बी ऑलवेज एवर रेडी टू लर्न एंड इनहैंस देयर न्यू स्किल्स बिकॉज टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग. सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज. द नेक्स्ट इज मैनेजिंग द चेंज. पीपल ऑफन फियर टू चेंज, मीन्स दे आर नॉट रेडी टू अडेप्ट इन दैट situation or with that change. तो organizational behavior helps manager reduce resistance and motivate people to accept change. Organizational behavior managers को changes में अडेप्ट करने के लिए और रेजिस्टेंस को कम करें, मतलब कि वो मना ना करें उस चीज़ के लिए भी हेल्प करता है और पीपल को मोटिवेट करता रहे इससे कि वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकें. So now let's start the opportunities of organizational behavior. Organizational behavior offers opportunities also. Organizational behavior opportunities देता है कि इंप्रूव कर सके एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को, एम्प्लॉय को सेटिस्फैक्शन दे सके, मोटिवेशन दे सके, डेवलप कर सके उनका इफेक्टिव लीडरशिप और टीम वर्क और कम्युनिकेशन भी हम एनहांस कर सकें, स्ट्रेस को मैनेज कर सकें, कन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस कर सकें, प्रमोट करें इनोवेशन को, यूनिक वेज को और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को स्ट्रेंथन कर सकें. सो बाय अप्लाइंग ऑल द ओबी प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशंस कैन क्रिएट अ सपोर्टिव एंड एंगेजिंग वर्क एनवायरनमेंट. सो बिफोर दैट इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, दैट इज एनहांसिंग एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी. OB always help to enhance the employee productivity. OB helps organization. OB हमेशा मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉय बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन को कि वो एम्प्लॉय का बिहेवियर समझ सकें, उनको क्या मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी देना है वो समझ सकें, क्या वर्किंग पैटर्न्स होना चाहिए वो समझ सकें. So they can design, the managers can design the jobs according to the employee satisfaction and set the goals, how much, मतलब कितने क्या लेवल तक वो गोल्स फॉलो कर सकते हैं, कौन से इंसेंटिव्स हैं जिससे वो बूस्ट कर सकें अपनी प्रोडक्टिविटी को. द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इंप्रूविंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन. एम्प्लॉय का जो सेटिस्फैक्शन है वो हम इंप्रूव कर सकते हैं. ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के पास एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हम ह्यूमन के बिहेवियर को समझ सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन समझ जाएगी जब ह्यूमन के बिहेवियर को कि एम्प्लॉय की नीड क्या है, एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या उसकी सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज कर सकता है, क्या उसका टर्नओवर रिड्यूस कर रहा है, तो हमें रेगुलर फीडबैक मिल सकते हैं, तो हमें एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन की स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी. द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी वी गेट इज फैसिलिटेटिंग लीडरशिप डेवलपमेंट. जब ओबी पढ़ते टाइम हमें ये पता चलता है कि लीडरशिप कौन सी इंडिविजुअल को कौन सी लीडरशिप स्टाइल से मोटिवेट हो सकता है, क्या फॉलो करने से वो पॉजिटिवली वर्क करेगा, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, क्या टीम परफॉर्मेंस होगी हर टीम पर, क्या उसे नर्चर करेगी एक इफेक्टिव लीडर्स के लिए. द नेक्स्ट इज एनहांसिंग टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन. टीम वर्क और कोलैबोरेशन में को इन्हांस करने के लिए भी ओबी के पास एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वो ग्रुप डायनामिक्स को पढ़ने में मदद करती है. जब हम स्टडी करते हैं ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप का साइज, ग्रुप की कोहेसिवनेस, ग्रुप के नॉर्म्स, ग्रुप के रोल्स, तो हमें पता चल जाता है कि टीम वर्क में कैसे इंप्रूव कर सकें, कैसे उनकी कोलैबोरेशन स्ट्रैटेजी पावर को इन्हांस कर सकें, कैसे उनकी कम्युनिकेशन गैप ना हो, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकें, कैसे टीम वर्क एफिशिएंटली टुगेदर वर्क कर सकेगी. सो द नेक्स्ट इज प्रमोटिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. ओबी जब हमें टूल्स देती है मैनेज करने के लिए कि एम्प्लॉइज रेजिस्ट ना कर सकें, मतलब मना ना कर सके किसी नई चीज़ में अडेप्ट करने के लिए, वो एक एक्सेप्टेंस देती है चेंजेस को एक्सेप्ट करने की, तो इसीलिए कि ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांजिशन होंगे वो स्मूथ वर्क कर सकें. सो इट फोकसेस कि अडेप्टेबिलिटी हो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी चेंजेस हो एम्प्लॉइज कैन अडेप्ट टू इट एंड एक्सेप्ट इट हैप्पीली. The next is reducing stress and workplace conflicts. Reducing stress and workplace conflicts by understanding individual differences. जब हम individual differences समझ जाते हैं, behavior समझ जाते हैं, वो भी हमें डिज़ाइन करने के लिए हेल्प करता है कि कैसा वर्क एनवायरनमेंट एम्प्लॉइज़ को चाहिए कि उनका स्ट्रेस मैनेज हो सके, कैसे उनका कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेज हो सके, उनके अकॉर्डिंग रोल्स उन्हें असाइन दें, उनकी जिसमें स्ट्रेंथ है, उनकी जो वीकनेस है उन्हें ना दें, प्रोवाइडिंग दैट वर्क प्लेस एनवायरनमेंट टू दैम.
द नेक्स्ट इज एनहांसिंग कम्युनिकेशन। एनहांसिंग कम्युनिकेशन एक अपॉर्चुनिटी है ओबी के पास। जब हम ओबी पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कम्युनिकेशन पैटर्न क्या है, क्या ऑर्गेनाइजेशन उस इफेक्टिव चैनल को यूज करे इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। द नेक्स्ट इज प्रमोटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इनोवेशन और क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए भी ओबी हेल्प करता है बाय एनकरेजिंग ओपननेस, ओपन टू help employees to get open to their ideas, open to their learning, open to their supportive cultures. So OB fosters innovative thinking among each and every employees. The next is enhancing motivation. OB also helps in designing motivational strategies. कौन सी मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी किस इंडिविजुअल को, किस ग्रुप की नीड को फुलफिल कर रही है, उसी मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने के लिए भी ओबी हेल्प करता है। द लास्ट इज स्ट्रेंथनिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए भी ओबी हेल्प करता है। इट शेप्स एंड स्ट्रेंथन एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर दैट अलाइंस विद द कंपनीज विजन। ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को उस अकॉर्डिंग शेप और स्ट्रेंथन करता है जो कि कंपनी के विजन को फॉलो कर सके, कंपनी की जो वैल्यूज हैं, गोल्स हैं, उसे फुलफिल कर सके। एक स्ट्रॉन्ग कल्चर क्रिएट करता है जो कि नॉर्म्स, प्रॉपर कंपनी के नॉर्म्स होते हैं, प्रॉपर बिहेवियर होता है, प्रॉपर जो कंपनी एक्सपेक्टेशन करती है एम्प्लॉय से, वो भी गाइड करता है। सो ओबी इनसाइट्स अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू कॉन्शियसली डिजाइन कल्चर थ्रू रिचुअल्स, सेरेमनीज, लीडरशिप बिहेवियर्स एंड कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस। और ओबी हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्शियसली डिजाइन करने में मदद करता है, उसके सारे रिचुअल्स, सेरेमनीज को फॉलो करते हुए और लीडरशिप के बिहेवियर को और कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस के अंडर। थैंक यू।